will give you only one single format, and by using this single format you can answer literally any type of follow-up question in your speaking part 3. This course is both for academic as well as for general training candidates who are planning their IELTS exam. This video will feature a complete course on IELTS speaking part 3, that are the follow-up questions in which majority of students face many problems about the format and answering the questions in most logical and coherent manner. If you don't know, there are basically 8 different types of questions in IELTS speaking part 3 follow-up questions, which includes opinion-based questions, comparative questions, prediction-based questions, reason problem solution question, cause-effect questions, abstract questions, advantages and disadvantages types of questions, cultural or global issues problem. These are 8 types of questions which you can encounter in your IELTS speaking follow-up questions part 3. And if you watch this course till the end, all your doubts and all your problems can be solved. You can get a major benefit by watching this complete course. I will be explaining all these 8 type of questions step by step, one by one, with 2 examples of each type. And after watching this video, I guarantee your IELTS speaking part 3 follow-up questions are all done. So let's start without wasting any time. Let's start with the very first and the most common and basic type of question for follow-ups. First type of question is opinion based question. So opinion based question is basically they are asking about your view on the given topic. So let's say the question is, do you think it's important for people to spend time with their families? अब जहां पर do you think आ जाए, that means ये opinion based वाला question है. अब format की बात करें, आपने format क्या follow करना है? Direct answer, one line explain and with a suitable example. That's it. It's that easy and that simple. Let's look at the sample answer for this sample question. So you can start by saying that yes, spending time with family is crucial. So in the first line, I have directly given my opinion. That is my direct answer. कि yes, मुझे लगता है कि family के साथ time spend करना crucial है. Then second line मैंने बोला, you have to explain why. आपको क्यों लगता है कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना क्रूशियल है? व्हाट ऑब्वियस, दिस हेल्प्स इन स्ट्रेंथनिंग रिलेशनशिप्स एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट. तो आपने यहाँ पे एक लाइन में एक्सप्लेन कर दिया. इन द एंडिंग यू हैव टू एंड विद द एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, हैविंग मील्स टुगेदर कैन एनकरेज मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस. अगर हम साथ में खाना खाते हैं देन इट कैन एनकरेज मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस. तो हमने बेसिकली क्या किया? डायरेक्ट आंसर, दैट मीन्स ओपिनियन, एक्सप्लेन एंड एग्जांपल. तो आपने यही फॉर्मेट को फॉलो करना है जो भी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए 8 टाइप्स ऑफ फॉलोअप क्वेश्चंस. सो लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल फॉर दिस ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन सेज, शुड स्कूल्स टीच स्टूडेंट्स प्रैक्टिकल स्किल्स लाइक कुकिंग? तो यहाँ पे अगेन आपने फर्स्ट लाइन में क्या बोलना है? आपने यू हैव टू डायरेक्टली गिव योर ओपिनियन, दैट मीन्स योर डायरेक्ट आंसर. Yes, schools should teach practical skills like cooking. अब यहाँ पर एक टिप दे दूं, don't focus on the very high and complex advanced vocabulary if you are not good at that vocabulary. जो भी आपके पास vocabulary words हैं, जितने आपका लेवल है, keep care कि आपका सिर्फ वही vocabulary words का साथ आपने आंसर बोलना है. The thing is that कि आपकी ग्रामर में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आपकी फ्लुएंसी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए. जो भी आपका लेवल है, just be comfortable with that. Make sure आपकी ग्रामर करेक्ट हो एंड आपकी बिसाइड्स फ्लुएंसी सही होनी चाहिए. एंड जो मैंने फॉर्मेट सिखाया, अभी सिखा रही हूँ, इसको आपने जरूर फॉलो करना है. तो आई गारंटी अगर आपकी फ्लुएंसी की प्रॉब्लम भी है तो वो भी आपकी इस फॉर्मेट से सॉल्व हो जाएगी. अगर आपको पता होगा कि आपने बोलना क्या है तो आपकी ऑब्वियसली फ्लुएंसी सॉल्व हो जाएगी एंड आपकी बहुत अच्छे बैंड आएंगे. अगर आपका 6 का टारगेट है, आई गारंटी आपके 7 आएंगे. सो इससे बेस्ट IELTS स्पीकिंग का पार्ट 3 का कोर्स आपको आई गारंटी कहीं नहीं मिलेगा. सो फर्स्ट हमने डायरेक्ट आंसर से शुरू किया. यस, स्कूल शुड टीच प्रैक्टिकल स्किल्स लाइक कुकिंग. उसके बाद आपने एक्सप्लेन कैसे करना है? दीज स्किल्स प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर रियल लाइफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बियॉन्ड एकेडमिक्स. अब यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया बियॉन्ड एकेडमिक्स, मतलब एकेडमिक्स के अलावा.
तो बियॉन्ड वर्ड का यूज करना सीखो कि बियॉन्ड वर्ड को हमने यूज कैसे करना है। ऑल्सो इन माई एवरी वीडियो आपको कुछ नया, कोई वोकैबुलरी वर्ड्स, कोलोकेशंस, सेंटेंसेस की फॉर्मेशंस, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलती हैं। तो जो भी मैं आपको आंसर्स बताऊं आप उनको जरूर नोट कर लेना, ताकि आप मेरी वोकैबुलरी को, जो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने फ्रेम किए हैं, उनको आगे वाले क्वेश्चंस में आप प्रैक्टिस कर सको। So last example, for example, knowing how to cook helps young adults live independently. अगर young teenagers को पता होगा कि हमने कुक कैसे करना है, they can live independently। जैसे आप सभी ने माइग्रेट होना है बाहर, स्टूडेंट्स ने भी होना है, एकेडमिक बेसिस पर होना है, स्टडी वीजास पर होना है, तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो बाहर जाके, अगर आपको कुकिंग करनी आती होगी तो। So this was the first type of question, that is opinion based. So now we'll have look at the second type of question जो मैंने कहा था, that is the कंपैरेटिव क्वेश्चंस। अब इसमें क्या होता है, कंपैरेटिव क्वेश्चंस में बेसिकली आपको किसी सिचुएशन को, किसी ट्रेंड को, किसी आइडिया को कंपेयर करने के लिए बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द क्वेश्चन इज हाउ हैज कम्युनिकेशन चेंज्ड कंपेयर्ड टू द पास्ट। अब कम्युनिकेशन का जो मेथड है वो एज कंपेयर टू पास्ट कैसे चेंज हुआ। जैसे कि मैंने बोला, फॉर्मेट क्या रखना है आपने, डायरेक्ट आंसर के साथ आपने शुरुआत करनी है। कम्युनिकेशन हैज बिकम फास्टर एंड मोर असेसिबल, ये मैंने डायरेक्टली अपना आंसर बोल दिया। जो कम्युनिकेशन है इट हैज बिकम मोर फास्टर, भी जल्दी हो जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मोर असेसिबल, ज्यादा असेसिबल है, यू कैन टॉक, यू कैन कम्युनिकेट सिटिंग इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इन एनीवेयर। सो इसके बाद यू हैव टू एक्सप्लेन द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी हैज मेड इट इजी टू कनेक्ट इंस्टेंटली अनलाइक लेटर्स इन द पास्ट। अब यहाँ पे अगर क्वेश्चन कंपैरेटिव था तो आपने कंपेयर करना है। जब आपने एक्सप्लेन करना है तो आपने कंपेयर करके यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि टेक्नोलॉजी के राइज होने से क्या हो गया है, हमें इजी हो गया, वी कैन इजीली कनेक्ट। अनलाइक पास्ट में क्या होता था, हमें लेटर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता था, ठीक है, अनलाइक लेटर्स इन दी पास्ट। अब यहाँ पे मैंने अनलाइक वर्ड यूज किया, मतलब अगर आपको कंपैरेटिव क्वेश्चन आए तो आप अनलाइक वर्ड का यूज करके बहुत अच्छे तरीके से अपने आंसर को एक्सप्लेन कर सकते हो। एंड इसी मेथड को ना राइटिंग टास्क 2 एसेज में भी इंप्लीमेंट करने की कोशिश किया करो। मेरी वीडियोस इतनी ज्यादा हेल्पफुल एंड एजुकेशनल होती है ना, आई डोंट नो व्हाई स्टूडेंट्स ओनली वॉच प्रेडिक्शन वीडियोस। अगर आपकी प्रेडिक्शन वीडियोस देखते हो बेशक देखो, लेकिन उससे पहले एटलीस्ट अपनी प्रेपरेशन तो रखो। प्रेडिक्शन से पहले आपकी प्रेपरेशन होनी चाहिए। आपका चाहे टारगेट 5 है, चाहे टारगेट 7+ है, आई विल रिक्वेस्ट कि एटलीस्ट एक बार विजिट माय चैनल, विजिट माय प्लेलिस्ट। मतलब हर एक वीडियो, हर एक टॉपिक, हर एक मॉड्यूल पर इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव एंड बेनिफिशियल है ना, सिर्फ वीडियोस को देख के ही मेरे कई सब्सक्राइबर्स ने अपने टारगेट्स को अचीव कर लिया है। एंड ऑब्वियसली माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स आर डूइंग वेरी वेरी वेल। So ये था आपका second type of question, that was comparative question. Let's look at one more example. So the question is, do you think books are better than movies for learning? क्या आपको लगता है कि books movies से better हैं learning के लिए? So पहली लाइन में क्या बोलोगे? डायरेक्ट आंसर, books are better for deep understanding while movies are more engaging. ठीक है, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली आंसर बोल दिया कि बुक्स आर बेटर, लेकिन जो मूवीज हैं दे आर मोर एंगेजिंग। तो अगर आपको 2 कंपैरेटिव चीजें दी गई हैं तो आप ये भी कर सकते हो कि दोनों की पॉजिटिव साइड बताओ। ये बहुत एक अच्छा मेथड है टू इलैबोरेट एंड एक्सटेंड योर आंसर। यू हैव टू गिव इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ बोथ दी थिंग्स दैट आर गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। सो यहाँ पे मैंने फर्स्ट लाइन में क्या किया, डायरेक्टली माय आंसर। सेकंड लाइन, इन सेकंड लाइन आई विल एक्सप्लेन व्हाई। बुक्स प्रोवाइड डिटेल्ड नॉलेज whereas movies simplify concepts visually। जो बुक्स होती है वो अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करती हैं, whereas जो मूवीज होती हैं वो आपको विजुअली कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करती हैं। फॉर इंस्टांस हिस्टोरिकल बुक्स एक्सप्लेन इवेंट्स इन डेप्थ compared to historical films। अब comparative question है तो try to use some comparative language, while, whereas, compared to, rather than, instead of। इसके ऊपर एक ऑलरेडी मेरी डिटेल्ड वीडियो है on the different types of comparative sentences related to IELTS speaking itself। तो I will drop the link in the description box below or visit my playlist for this। So this was the second type of question. Let's move on to the third type of question, that is the prediction questions। इसमें आपको फ्यूचर के साथ रिलेटेड के लिए कुछ आपको पूछेगा, प्रिडिक्शन के लिए पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल, विल पीपल ट्रेवल मोर इन द फ्यूचर? क्या लोग फ्यूचर में ज्यादा ट्रेवल करेंगे? जरूरी नहीं है वो पीपल के बारे में पूछे, वो आपके अकेले के बारे में भी आपसे पूछ सकते हैं।
तो यहाँ पे विल आ गया, फ्यूचर आ गया, ऑब्वियसली प्रिडिक्शन का क्वेश्चन हो गया, वो आपको प्रिडिक्शन करने के लिए पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है. सो यस, पीपल आर लाइकली टू ट्रेवल मोर इन द फ्यूचर. आई स्टार्टेड डायरेक्टली फ्रॉम माई आंसर. Cheaper airfares and improved technology will make international travel accessible. मैंने रीजन दे दिया कि क्यों लोग ज्यादा ट्रेवल करेंगे, क्योंकि जो एयरफेयर्स हैं वो और सस्ते हो जाएंगे, टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल कर देगी आपका आना जाना. इस करके फॉर एग्जांपल आप बोल सकते हो इसमें, बजट एयरलाइंस ऑलरेडी ऑफर अफोर्डेबल ऑप्शंस फॉर ग्लोबल टूरिज्म. आप यहाँ पे किसी और एयरलाइन कंपनी का नाम भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो. So now look at one more example for prediction based question. So for example, how do you think education will change in the future? आपको क्या लगता है एजुकेशन फ्यूचर में कैसे चेंज हो सकती है? आपने स्टार्ट करना है डायरेक्टली अपने आंसर से. एजुकेशन विल लाइकली बिकम मोर टेक्नोलॉजी ड्रिवन. टेक्नोलॉजी ड्रिवन वोकैबुलरी वर्ड आप इनको नोट कर सकते हो. यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, एजुकेशन विल लाइकली, मतलब मे बी को आप लाइकली भी यूज कर सकते हो. तो जिनका टारगेट 7 है ना, आई मतलब रिक्वेस्ट कि ये वीडियो स्किप मत करना, एंडिंग तक जरूर देखना. आपको इसमें तो फॉर्मेट पता चलेगा, फॉलोअप्स को आंसर कैसे करना है आपको ये पता चलेगा, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस आप कैसे कैसे कहां पर क्या यूज कर सकते हो वो भी पता चलेगा, प्लस वोकैबुलरी आपको बहुत ज्यादा पता चलेगी. सो दिस इज द वेरी 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 बेनिफिशियल कंप्लीट स्पीकिंग पार्ट 3 कोर्स. सो इसके बाद क्या हो जाएगा, यू हैव टू एक्सप्लेन योर आंसर विद एडवांसमेंट्स इन एआई. एआई आपको पता है सभी को, एआई बहुत एडवांस हो रही है. पर्सनलाइज्ड लर्निंग टूल्स विल बी कॉमन. जो पर्सनलाइज्ड लर्निंग टूल्स है वो आगे जाके बहुत कॉमन हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, वर्चुअल रियलिटी कुड बी यूज्ड to teach practical skills interactively. AI can be used to teach practical skills interactively. तो ये आप इसको for an example बोल सकते हो. मतलब adding an example in the follow-up questions is very 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 important. So let's move on to fourth, again very important type of question, that is प्रॉब्लम सॉल्यूशन क्वेश्चन. अब यहाँ पर आपको एक सॉल्यूशन पूछेंगे किसी भी प्रॉब्लम के रिलेटेड. व्हाट कैन बी डन टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन इन सिटीज. मतलब प्रॉब्लम दे दी कि एयर पोल्यूशन है और आपको इसका सॉल्यूशन पूछ रहा है. व्हाट कैन बी डन to reduce air pollution in cities. Again, you have to start directly from your answer. Promoting public transport can help reduce air pollution. मतलब अगर हम public transport को promote करते हैं, it can help reduce air pollution. कैसे? This will decrease the number of vehicles on the road and lower emissions. Obviously अगर लोग public vehicles को use करेंगे तो private vehicles कम use होंगे. इसके लिए roads पे जो vehicles है वो कम होंगे and emissions भी जो है, pollution की emissions जो है वो भी कम हो जाएंगी. फॉर इंस्टेंस, लाइक इन लंडन हैव रिड्यूस्ड एयर पोल्यूशन बाय एनकरेजिंग इलेक्ट्रिक बसेस. इलेक्ट्रिक बसेस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन. So let's look at one more example related to this particular type of problem solution question. So question is, how can we make public transport more attractive to people? जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है हम वो पीपल के लिए, लोगों के लिए और अट्रैक्टिव कैसे बना सकते हैं. डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम योर आंसर. इंप्रूविंग कन्वीनियंस एंड अफोर्डेबिलिटी. मैंने 2 पॉइंट्स बोल दिए. इंप्रूविंग कन्वीनियंस एंड अफोर्डेबिलिटी कैन मेक ट्रांसपोर्ट सिस्टम अपीलिंग. कैन मेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ट्रांजिट सिस्टम भी बोल सकते हो, अपीलिंग. efficient schedules होने चाहिए and lower ticket prices will encourage more users. For example, Singapore's reliable and clean metro system attracts many commuters. तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली अपना आंसर बोला, फिर मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया कैसे एंड मैंने एग्जांपल दे दी सिंगापुर की. So this is the fourth important type of question. Let's look at the next type, that is cause effect question. इसमें आपको पूछेगा भी कॉज क्या है, किसी भी प्रॉब्लम का कोई कॉज क्या है, प्रॉब्लम का कॉज क्या है. सो व्हाट कॉजेज पीपल टू प्रेफर फास्ट फूड. भी फास्ट फूड को लोग ज्यादा प्रेफर क्यों कर रहे हैं. द मेन रीजन इज, ऑब्वियसली कॉज है तो यहाँ पे आपने स्टार्टिंग कैसे करनी है. द मेन रीजन इज, द प्राइमरी रीजन इज, व्हाट आई थिंक इज. मतलब स्टार्टिंग को आप कुछ भी कर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड कि नेवर यूज एनी क्रैम्ड फ्रेजेस. जो मेरे माइंड में फ्रेजेस होते हैं दैट इज अकॉर्डिंग टू द जनरल इंग्लिश, जनरल नेटिव जो स्पीकर्स को यूज करते हैं. what I think is, what is according to my
व्यू पॉइंट, अकॉर्डिंग टू माई पर्सपेक्टिव, व्हाट एक्चुअली आई थिंक इज ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो आप मतलब नेचुरली जस्ट फ्रेजेस को बोल सकते हो, वैसे फ्रेजेस बोलो, क्रैम्ड मत बोलो। अगर आपने कोई क्राइम भी किया है तो मतलब उनको बोलने का तरीका सीखो कि आपने नेचुरल वे में उसको कैसे बोलना है। एनीवेज, ये एक अलग बात है। जो स्पीकिंग के टिप्स हैं कि आपने 7 बैंड स्कोर कैसे करने, इसके लिए इफ यू वांट डिटेल्ड वीडियो ऑन ओनली टिप्स टू स्कोर 7 बैंड्स इन IELTS स्पीकिंग, कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। नेक्स्ट टाइम जब वीडियो आएगी ऑन स्पीकिंग की, आई विल मेक अ कंप्लीट वीडियो ऑन 7+ बैंड टिप्स फॉर IELTS स्पीकिंग सेक्शन. So again, the question is, what causes people to prefer fast food? Directly start from the answer. The main reason is convenience and busy lifestyle. ये इतना convenient है परचेज करना, हर जगह पर मिलता है, एंड जो लाइफस्टाइल है सभी की काफी बिजी हो गई है इसलिए एक्सप्लेन कैसे करोगे? फास्ट फूड सेव्स टाइम ऑब्वियसली एंड इज इजीली असेसिबल, जैसे कि हमने ऊपर प्रॉब्लम में आंसर में बोला, स्पेशली फॉर वर्किंग इंडिविजुअल्स। ज्यादातर ये जो वर्किंग इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए चीज बहुत ही ज्यादा इजीली असेसिबल है। एग्जांपल कैसे बोलोगे? फॉर एग्जांपल, ऑफिस वर्कर्स ऑफन रिलाई ऑन फास्ट फूड ड्यूरिंग लंच ब्रेक्स। तो आप एग्जांपल के साथ भी इसको बोल सकते हो। लेट्स लुक एट फॉर मोर एग्जांपल for this particular type of question. So the question says, so the next question is, what are the causes of stress in modern life? भी modern life में इतना जो stress है उसका क्या root cause है? The primary cause of stress is the fast paced lifestyle. मतलब एक आपने reason ऐसा choose करना है जिसको मैं बोलूं कि that is overall idea. आपने सब आइडिया चूज नहीं करना, ओवरऑल एक आपने मेन आइडिया चूज करना। ओवर थिंकिंग तो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी। एक आइडिया, एक्सप्लेन, एग्जांपल, दैट्स इट। कोई भी आपको फॉलो अप क्वेश्चन आ जाए, आपने यही 3 पॉइंट्स अपने माइंड में रखने, इससे इजी नहीं हो सकता। डायरेक्ट आंसर, एक्सप्लेन एंड उसके बाद एग्जाम्पल। और एग्जामिनर्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि आप एक आंसर को 10-10 लाइन का बोलो, 3 से 4 मिनट तक का बोलो। आज का ट्रेंड हैज चेंज्ड। एग्जामिनर्स के पास इतना टाइम नहीं है, ना ही इतनी पेशेंस है। दे वांट टू सी योर अट्रैक्टिव एंड इंप्रेसिव आंसर्स इन लेस टाइम। तो दिस इज द बेस्ट वे टू आंसर एनी फॉलो अप क्वेश्चन। अगेन, आपने कैसे बोलना है? द प्राइमरी कॉज ऑफ स्ट्रेस इज द फास्ट पेस्ड लाइफ. People often struggle to balance work, family, and personal commitments. For example, long working hours leave little time for relaxation. तो मैंने डायरेक्ट आंसर बोला, एक्सप्लेन कर दे कि फैमिली के लिए टाइम कम बचता है, कमिटमेंट्स के लिए टाइम कम बचता है, एग्जांपल दे दे कि ज्यादातर लॉन्ग वर्किंग आवर्स हो गए हैं सभी के लिए, इससे आपको रिलैक्स करने का टाइम ही नहीं मिलता, जिसके लिए स्ट्रेस होता है। So this was the 5th type of question. Moving on to next type of question, that is abstract questions. Let's look at the example. So the question is, why is art important to society? Society के लिए art important क्यों है? So never ever think multiple ideas in your mind. Just आपको एक आइडिया लेना है, उसको ही आपने एक्सप्लेन करना है, उसकी ही आपने एग्जाम्पल ऐड करनी है। ओके, सो आपने यहाँ पे डायरेक्ट अपने आंसर से शुरू कैसे करना है? क्वेश्चन इज, व्हाई इज आर्ट इंपॉर्टेंट? सो आर्ट इज वाइटल बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स कल्चर एंड इमोशंस। ऑब्वियसली आर्ट कल्चर इमोशंस को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए आर्ट इंपॉर्टेंट है। इट हेल्प्स पीपल एक्सप्रेस आइडियाज एंड प्रिजर्व्स ट्रेडिशंस फॉर फ्यूचर जनरेशन। अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने में इट हेल्प्स, एंड ऑब्वियसली जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए प्रिजर्व करती है हमारे कल्चरल हेरिटेज एंड हमारे ट्रेडिशंस। फॉर एग्जांपल, हिस्टोरिकल पेंटिंग्स like the Mona Lisa provide cultural insights. Mona Lisa is a very 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 famous painting. अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, it's one of the most famous paintings which was painted by Leonardo da Vinci. So इसके बाद we will look at one more example. So let's look at one more example. What role does honesty play in relationships? Relationships में honesty क्या role play करती है? Start from your answer. Honesty is essential for trust and healthy relationships. Obviously, honesty trust के लिए important है and healthy relationships के लिए important है. Look at the vocabulary words जो मैंने यहाँ पे यूज कर रखे हैं. Vocabulary words, my selection of words, language, types of sentence formations, very important. So it fosters open communication and prevents misunderstandings. अगर हम openly converse करेंगे तो इससे misunderstandings नहीं होती हैं. For example, for instance, being honest about feelings strengthens partnerships. तो अब हमारी feelings को अगर हम honest रखेंगे, it can strengthen our partnership relationships.
Moving on to seventh important type of question, that is advantages and disadvantages type of question. Let's look at the example. What are the advantages and disadvantages of online learning? तो आपके पास एडवांटेज पूछा गया है, डिसएडवांटेज पूछा गया है. लेट्स लुक एट द सैंपल आंसर. सो ऑनलाइन लर्निंग इज फ्लेक्सिबल बट लैक्स फेस टू फेस इंटरेक्शन. मैंने फर्स्ट डायरेक्ट अपना आंसर ही ऐसे बोला कि जिसमें दोनों कवर हो गए, एडवांटेज भी कवर हो गया, डिसएडवांटेज भी कवर हो गया. अब क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन लर्निंग. तो मैंने फर्स्ट लाइन में ही एडवांटेज भी बता दिया, डिसएडवांटेज भी बता दिया. ऑनलाइन लर्निंग इज फ्लेक्सिबल बट लैक्स फेस टू फेस इंटरेक्शन. एक्सप्लेन कैसे करोगे? स्टूडेंट्स कैन स्टडी एट देयर ओन पेस. दैट मीन्स कि इट इज फ्लेक्सिबल, मतलब इट कैन स्टूडेंट्स कैन स्टडी एट देयर ओन पेस, बट मोटिवेशन कैन बी अ चैलेंज. अगर फेस टू फेस हो, इंटरेक्शन हो, तो ऑब्वियसली मोटिवेशन बहुत मिलती है. मोटिवेशन कैन बी अ चैलेंज. फॉर एग्जाम्पल, प्लेटफॉर्म्स लाइक कोर्सेरा ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी बट लैक क्लासरूम मैनेजमेंट. कोई भी आपने यहाँ पे ऐप का नाम दे दिया, कोई भी वेबसाइट का नाम दे दिया कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, बट जो क्लासरूम मैनेजमेंट है वो एक प्रॉब्लम हो जाती है. Let's look at one more example for the problem solution question. So the question is, what are the advantages and disadvantages of living in a big city? अब big city में रहने के advantages क्या हैं, disadvantages क्या हैं? Directly start from your answer. Living in a big city offers better opportunities but causes stress. तो मैंने फर्स्ट लाइन डायरेक्ट आंसर में ही मैंने अपना एडवांटेज भी बता दिया, डिसएडवांटेज भी बता दिया. आई गेस आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी. ये जो कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया है 2 दिन लगा के, आई गेस आपको इससे बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा. सो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. ऐसे कंटेंट वीडियोस बनाने में हर में भी बहुत ज्यादा मेहनत, हार्डवर्क लगता है. तो आपका जो लाइक होती है, वीडियोस को शेयर करते हो, कमेंट करते हो, सब्सक्राइब करते हो, इससे हमें और मोटिवेशन मिलती है कि आपके लिए ऐसा ऐसा और अच्छा कंटेंट लेके आए. एंड वीडियो के एंड में एक बहुत स्पेशल चीज बताने वाली हूँ आपको. स्टे ट्यून्ड विद मी टिल द एंड. अभी बस हमारे पास ओनली वन लाइफ टाइप ऑफ क्वेश्चन इज लेफ्ट. सो द क्वेश्चन हमारा था, लिविंग इन अ बिग सिटी ऑफर्स बेटर अपॉर्चुनिटीज बट कॉजेज स्ट्रेस. आपने फर्स्ट लाइन में क्या दे दिया, डायरेक्टली यू हैव गिवन योर आंसर. सो उसके बाद क्या बोलोगे, एक्सप्लेन कैसे करना है आपने. व्हाइल जॉब्स एंड फैसिलिटीज आर अबंडेंट, जॉब्स जो हैं, फैसिलिटीज हैं, अबंडेंट है, तो मैनी की जगह आप अबंडेंट लगा सकते हो. ट्रैफिक एंड हाई लिविंग कॉस्ट्स आर मेजर ड्रॉबैक्स. तो यहाँ पे एडवांटेज क्या है आपने वो बता दिया, डिसएडवांटेज क्या है आपने वो बता दिया. फॉर एग्जाम्पल, cities like New York provide high salaries but have expensive housing. जो न्यूयॉर्क है वहां पे आपको जो लाइफस्टाइल है वो बहुत सैलरीज हाई मिलती हैं, लेकिन जो हाउसिंग है दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. Moving on to the last type of question, that is cultural or global issues question. So the question is, how does technology affect traditional jobs? जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रेडिशनल जॉब्स को कैसे अफेक्ट कर रही है. डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम योर आंसर. टेक्नोलॉजी replaces some traditional jobs but creates new opportunities. टेक्नोलॉजी है वो ट्रेडिशनल जॉब को रिप्लेस जरूर कर रहा है बट क्रिएट्स न्यू अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रहा है. ऑटोमेशन, मतलब जो टेक्नोलॉजी को हम ऑटोमेशन भी बोल सकते हैं. ऑटोमेशन रिड्यूसेस मैनुअल टास्क while tech based roles are on the rise. ठीक है जी, ऑटोमेशन के साथ क्या हो रहा है, जो मैनुअल जॉब्स हैं वो कम हो रही हैं, जो टेक्निकल बेस्ड जॉब्स हैं वो इंक्रीज हो रही हैं, आर ऑन द राइज. फॉर एग्जांपल, AI हैज रिड्यूस्ड फैक्ट्री जॉब्स बट इंक्रीज्ड डिमांड फॉर प्रोग्रामर्स. AI ने जो फैक्ट्री जॉब्स हैं, लेबर की जॉब है वो तो कम कर दी हैं, लेकिन जो AI को हैंडल करेगा, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर होगा, कोई प्रोग्रामर होगा, उसकी डिमांड जो है वो उसने बढ़ा दी है. ये चीज है. ठीक है जी. सो नाउ वी विल लुक एट वन मोर एग्जांपल ऑफ द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, दैट इज द कल्चरल और ग्लोबल इश्यूज वाला क्वेश्चन. सो व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन लोकल ट्रेडिशंस? ग्लोबलाइजेशन का लोकल ट्रेडिशंस पे क्या इफेक्ट होता है? ग्लोबलाइजेशन होता है बेसिकली एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस. इट्स कॉल्ड ग्लोबलाइजेशन. सो ग्लोबलाइजेशन हैज डाइल्यूटेड मेनी लोकल ट्रेडिशंस. डाइल्यूट होता है कम कर देना. काफी ट्रेडिशंस को ग्लोबलाइजेशन की वजह से कम हो गया है. उसके बाद आपने एक्सप्लेन कैसे किया, पीपल ऑफन अडॉप्ट ग्लोबल ट्रेंड्स लूजिंग टच विद देयर हेरिटेज. लोग ग्लोबल ट्रेंड को फॉलो करते हैं, अपना जो हेरिटेज, जो अपना ट्रेडिशंस हैं उनको वो भूलते जा रहे हैं. फॉर इंस्टांस,
traditional attires is being replaced by Western clothing in many countries. Very, very common example. So this is how you can answer all 8 different types of follow-up speaking part 3 questions with only a single format. So the format is direct answer, explain and example. That's it. कोई भी आपको क्वेश्चन आ जाए, आपने कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल भी आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने ओवरथिंक नहीं करना, मल्टीपल आइडियाज आपने नहीं सोचने. Just have one main idea, direct answer, explain why, then add an example at the end. That's it. अब आपको मैंने 8 type of questions करवाए with 2 examples of each. So I think आपको clarity काफी हद तक हो गई होगी. If you want more video on the same topic or if you want a video on speaking tips only, comment me in the comment section below. जिसकी voting ज्यादा होगी tips के ऊपर या same follow-ups के ऊपर, I will make that video once again जब भी speaking module की हम next time video लेके आएंगे. So if you find this video informative and helpful, do give it a thumbs up, share it with your friends, and don't forget to subscribe my channel for more daily informative videos on IELTS. Until then, stay happy, stay healthy, and all the very, very best for your IELTS exam.